Yes, suprasegmental feature, and one of the suprasegmental features is stress. So stress is considered to be a very important feature while we are speaking, and it makes our speech different. It also add meaning to our speech. First, we'll define what suprasegmental feature is and features are or is, and then we'll come to stress. What are suprasegmental features or what are suprasegmental phonemes? This is the first question. What are suprasegmental features or what are suprasegmental phonemes? Uh, Phonemic particles that we so far been considering as vowels, consonants, diphthongs, and triphthongs, and many other are called segmental phonemes. Okay, what they are called? They are called segmental phonemes. So when whatever you have studied till today, that is considered to be segmental phoneme. I mean, these are the different segments in that are divided in vowels, consonants, and diphthongs, and they are called segmental phonemes. They contribute to the meaning of a speech segment. Like whenever you are speaking, you just add these different phonemes together, and you convey meaning to your listener. That is why they are a speech segments. And apart from this class of segmental phoneme, there is another class of particles that play equally important role, and they are suprasegmental phonemes. Okay, they are suprasegmental phonemes, and that is why they are considered to be very much important because they play very important role in adding meaning or in conveying our meaning. Like whenever you are saying something and you are saying it in a very flat mood, in a very flat manner, the impact of those sentences would not be that much impressive. On the other hand, if you would add suprasegmental features into your speech, they would play a very important role in adding the meaning or enhancing the meaning of your speech. So, what are those suprasegmental features? Usually, we look at features of stress, pitch, intonation, and juncture comprise this class. Okay, so most of the time, if somebody asks you what are suprasegmental phonemes or suprasegmental features, you would say that segments which are additional to segmental phonemes, they are considered to be suprasegmental features. Okay, so stress is one of the suprasegmental features. So that is why we call it a suprasegmental feature. Stress is a suprasegmental feature. On the other hand, intonation is another. Okay, like whenever you are speaking, you add stress to certain syllables. Those syllables, they become very much prominent whenever you are speaking them. And most of the time in English language, we have bisyllabic words, monosyllabic words, bisyllabic words, and polysyllabic words. Means one, two, and more than two syllables are there in one word. But it doesn't mean that all syllables in one word they are stressed simultaneously. No, this does not happen in English language. So English language, what happens most of the time? We put stress to one syllable. One word can have more than one syllable, two syllables, three syllables, four syllables. Okay. So we put stress to one particular syllable, and that one particular syllable we are stressing at, that is considered to be a stress syllable. So it is difficult to imagine human communication without these features. I mean, intonation and stress, okay, and juncture, okay, they are considered to be very much important features of human communication. Like when if you are speaking to somebody in a very flat way, people would say, are you just, I mean, even today we do not report news like that. Okay, but whenever you are speaking, people just expect that you must show some sort of the rise and fall the words you are speaking. So uh, suprasegmental features, they are additional to segmental features. They are additional to segmental features, and they add further meaning, and they add embellishment to our speech, human speech, you can say. And then comes our topic, which we are going to discuss today, that is stress. What is stress?
तो स्ट्रेस को आपने आज हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, या स्ट्रेस है क्या उसको हमने देखना है। फिजियोलॉजिकली स्ट्रेस मीन्स greater articulatory effort. What does stress mean? Greater articulatory effort. अगर आप स्ट्रेस को डिफाइन करें तो आप ये कहेंगे, उसको हम फर्दर भी आगे उसकी डेफिनेशन की तरफ फर्दर भी हम उसमें जाएंगे। स्ट्रेस इज जनरली डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस a syllable has. Stress is generally defined as the degree of prominence a syllable has. अब प्रोमिनेंट कौन सी चीज होती है? जो दूसरों से हट के हो, डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, नुमाया हो जो दूसरों से। अब जब आप एक वर्ड बोलते हैं, देर आर डिफरेंट सिलेबल्स इन दैट वर्ड, एंड व्हेन एवर यू आर स्पीकिंग दैट वर्ड, व्हाट हैपेंस कि उसमें से एक सिलेबल जो है उसको आप ज्यादा स्ट्रेस करते हो एज कंपेयर टू अदर। उसको अमन के ज्यादा स्ट्रेस का मतलब ये है कि उसको आप यू मेक इट मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू अदर्स और देन अदर्स। आप उसको ज्यादा प्रोमिनेंट बना रहे हो। जब आप एक चीज को, एक सिलेबल को एक वर्ड के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट करते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, you are putting greater articulatory effort. Okay, greater articulatory effort कि आप अपने लंग से ज्यादा प्रेशर को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे उस सिलेबल्स को, क्या उस सिलेबल को बोलने के लिए। आगे हम एग्जांपल्स भी हमारे पास आ जाएंगी सर्टेनली। तो उस सिलेबल को बोलने के लिए आप क्या करते हो, आप greater articulatory effort को पुट करते हो। okay, by putting stress on a particular segment we give it greater prominence. और जब आप articulatory effort ज्यादा पुट करते हो तो that segment becomes stressed और उसको क्या मिलती है, greater prominence मिलती है as compared to other syllables. So various types of meaning are conveyed by distributing stress pattern over speech segments in a controlled manner. Okay, so usually stress तो word पे हम ज्यादा focus करते हैं। Two types of stress can be established. एक तो word पे हम ज्यादा stress करते हैं और फिर phrasal stress भी हो सकता है, लेकिन उसकी एग्जांपल हमारे पास उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि phrasal stress को हम थोड़ा सा इंटोनेशन में जाके डिस्कस कर लेंगे कि फ्रेजल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट कैसे है और वो चेंज किस तरह से होता है। अभी आपने ज्यादातर जो फोकस है वो जो आप कह सकते हैं कि वर्ड है उसके ऊपर आपने करना है, या कंपाउंड वर्ड है तो उसके ऊपर आपने फोकस करना है। एंड यस, आर्टिकुलेटरी I couldn't get your question, please. Syllable? No, there is no articulatory stress basically. Articulatory stress कुछ भी नहीं होता है। मैंने ये कहा कि articulatory effort, I spoke the word articulatory effort. Articulatory effort क्या है? आपके articulators of speech हैं जो आप already पढ़ चुके हैं। तो articulators of speech में से जब आप एक word को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप अपने आर्टिकुलेटर्स की जो एफर्ट है उसमें आप इजाफा कर रहे हो। एक वर्ड को जब आप स्ट्रेस करेंगे तो स्ट्रेस करते हुए आप क्या करते हैं, आप उस वर्ड को ज्यादा मस्कुलर एनर्जी के साथ आप बोलते हैं उसको। आप जब मस्कुलर एनर्जी आप बोल रहे होते हैं, इट मींस कि आप आर्टिकुलेटरी एफर्ट को आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकुलेटरी एफर्ट को आप बढ़ा रहे हैं। तो आर्टिकुलेटरी एफर्ट बढ़ेगी तो वो सिलेबल क्या होगा, सिलेबल प्रोमिनेंट हो जाएगा। सिलेबल प्रोमिनेंट कैसे होगा, सिलेबल प्रोमिनेंट इस लिहाज से हो जाएगा कि वो दूसरे जो सिलेबल्स हैं उस वर्ड में आने वाले उससे डिफरेंट हो जाएगा। तो आगे हम एग्जांपल्स देंगे, आपको पता चल जाएगा कि सिलेबल्स को हम किस तरह से एक वर्ड में देख रहे होते हैं और उसमें स्ट्रेस जो है वो पुट किस तरह से किया जाता है। अब स्ट्रेस में यूजुअली जो दो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट नेचर ऑफ स्ट्रेस। ओके, नेचर ऑफ स्ट्रेस, टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। number one uh, number one, that is production, and number two, that is perception. Okay? The understanding of the nature of stress requires the comprehension of the two aspects of stress. Number one, production. Number two,
दैट इज परसेप्शन, कि वो जो वर्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, और जो वर्ड परसीव किया जा रहा है उसको परसीव किस तरह से किया जा रहा है. तो प्रोडक्शन मीन्स व्हाट अ स्पीकर डज इन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस सिलेबल. ओके, प्रोडक्शन means what a speaker does in producing the stress syllable. And what is perception? Perception means what characteristics of sound make a syllable seem to a listener to be stressed. कि अब आप एक जो बंदा है वो क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है. whenever he is producing that sound, तो वो जो स्पीकर है हमारे पास, हम देखेंगे कि वो एक स्ट्रेस सिलेबल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहा है, किस तरह से उसको प्रोमिनेंट बना रहा है. और परसेप्शन क्या है कि परसेप्शन में हम ये देखते हैं कि लिसनर को कैसे पता चलता है कि एक वर्ड में जो फुला जो सिलेबल है वो क्या है, स्ट्रेस है. हम इनको दोनों को क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं. So these two things are closely related, but they are not identical. Means they are different from one another. आपने ये नहीं कहना कि production और perception एक जैसी, because perception is very much related to the listener, and production is very much related to the speaker. So the production of stress depends on the speaker using more muscular energy for the stress syllables than for the unstressed ones. So muscular energy means when we produce the stress syllables, the muscles which we use to expel air from the lungs are more active, producing a higher subglottal pressure. Okay. So whenever means I'm speaking, I'm just uttering different words. So different words and different syllables, they ask for different muscular energy. So that different muscular energy, that is that defines which particular syllable is more prominent as compared to the other. Okay, so the perception of stress, yes. Okay, the perception of stress means how we listen to the word and perceive certain syllables to be stressed. All stress syllables have one common characteristic, and that is prominence. मीन के अगर कोई आपको सिंपली अगर आपने डिफाइन करना हो कि स्ट्रेस क्या है, तो आप कहेंगे कि स्ट्रेस में एक चीज जो है वो क्या है, कॉमन है, कि जितने भी स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोमिनेंट होते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स. एज कंपेयर टू द अदर्स दे आर मोर प्रोमिनेंट. अब ये प्रोमिनेंट होते कैसे हैं, दिस इज द क्वेश्चन. कि जो स्ट्रेस सिलेबल्स हैं, stress syllables are more prominent than the unstressed ones, that is for sure. लेकिन ये prominent होते कैसे हैं, what kind of the factors we add to a syllable to make it more prominent. Okay, so ये इन factors को आपने देखना है कि जो prominent अगर हम बना रहे हैं किसी भी उस syllable को, तो वो किस तरह से prominent होगा, वो prominent होगा सर्टन फैक्टर्स की बिना पर वो प्रोमिनेंट होगा. और उन फैक्टर्स में आपके पास 4 फैक्टर्स हैं. 4 फैक्टर्स के थ्रू आप एक सिलेबल को प्रोमिनेंट बना सकते हैं, एक सिलेबल को नुमायां कर सकते हैं, एक सिलेबल को दूसरे सिलेबल से डिफरेंट कर सकते हैं. नंबर 1 क्या है, लाउडनेस. लाउडनेस. So it is sometimes thought that stress syllables are louder than the unstressed one. अब एक वर्ड में जब आप डिफरेंट सिलेबल्स को आप देख रहे होते हैं, तो क्या होता है, उसमें एक जो सिलेबल है वो दूसरे जो उसके इर्द गिर्द के सिलेबल्स हैं उनसे क्या होता है, वो लाउडर होता है. उसकी एक क्वालिटी है. सो आप कह सकते हैं कि लाउडनेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोमिनेंस. कि प्रोमिनेंस देने के लिए किसी भी सिलेबल को प्रोमिनेंस देने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन नॉट से, लेकिन ये है कि वन ऑफ द फैक्टर्स वो क्या है, लाउडनेस है. कि वो जो सिलेबल है अपने नेबरिंग सिलेबल से क्या होगा,
लाउडर होगा, उसको बोलने में आपको वाजे फील होगा कि ये बाकी इर्द गिर्द के सिलेबल से क्या है, लाउडर है। दूसरा क्या है, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोमिनेंस, दैट इज लेंथ। लेंथ, okay, so the length of the syllables plays an important part in prominence, कि वो if 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 one syllable in a word is made longer than the others, it is perceived to be stress. अब पहला तो ये हो गया कि वो सिलेबल क्या होगा, इर्द गिर्द के सिलेबल से लाउडर भी होगा और वो इर्द गिर्द के सिलेबल से लॉन्गर भी होगा। वो लेंथ में उनसे क्या होगा, जब आप बोल रहे होंगे तो आपको you will feel that this particular syllables is longer as compared to other syllables जो उसी वर्ड में क्या हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं। And there is the third factor of prominence, that is pitch. So stress syllables have a higher pitch than the others. अब pitch क्या होती है, pitch को आप कैसे define करते हो, frequency of vibrations of vocal folds जो है उसको हम क्या कहते हैं, pitch कहते हैं। frequency of vibrations of vocal folds, vocal cord जिसको आप बोलते हैं। तो वोकल कार्ड में जितनी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, अब फीमेल में आपको पता है कि इनकी जो पिच है एज कम्पेयर टू मेल ये बहुत ज्यादा होती है, बल्कि मेरा ख्याल है कि मेल की वॉइस की जो पिच है जहाँ पे खत्म होती है वहां पे फीमेल की वॉइस की पिच शुरू होती है। ओके, वो आमतौर पे आपने डायलॉग सुना होगा ना फिल्मों में, ओके, कि जहाँ पे तुम्हारी अक्ल खत्म होती है वहां से मेरी जहानत शुरू होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो क्या है कि जहाँ पे मेल की वॉइस की जो पिच है जहाँ पे खत्म होती है, फीमेल की वहां से भी नहीं बल्कि उससे आगे से कहीं शुरू होती है। ठीक है, तो इसी वजह से उसकी जो वॉइस की पिच है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली मेल से काफी ज्यादा होती है। तो पिच इज एसेंशियली परसेप्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच, वो आप उसको फील कर रहे होते हैं कि, और इसमें आमतौर पे जो प्रोमिनेंट सिलेबल होता है वहाँ पे जो बोलने वाले की जो पिच है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है। और फोर्थ फैक्टर जो है, इसमें फोर ही फैक्टर्स हैं, फोर्थ जो है वो लास्ट है, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी के किस तरह से एक जो सिलेबल है वो प्रोमिनेंट बनता है, उसमें एक चीज है क्वालिटी। A syllable will tend to be prominent if it contains a vowel or any other sound which is different in quality from the neighboring sounds. अब वो जो साउंड होगी, क्योंकि वो तीनों फैक्टर उसमें ऐड हो गए ना, उसमें लाउडनेस भी ऐड होगी है, उसमें लेंथ भी ऐड होगी है, उसमें पिच भी ऐड होगी है, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये मिलकर उसे क्या दे रहे हैं, एक डिफरेंट क्वालिटी दे रहे हैं, एक डिफरेंट क्वालिटी दे रहे हैं जो बाकी सिलेबल्स के पास मौजूद नहीं है, बाकी सिलेबल्स के पास मौजूद नहीं। इसी वजह से वो क्या होता है, ओके, दैट साउंड ऑफ डिफरेंट क्वालिटी विल बी मोर प्रोमिनेंट एंड सो विल बी हर्ड एज स्ट्रेस। इसी वजह से जब, क्योंकि एक सिलेबल को लाउडनेस भी उसमें ऐड हो जाएगी, लेंथ भी ऐड हो जाएगी, पिच भी ऐड हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो सिलेबल दूसरे सिलेबल से प्रोमिनेंट भी हो जाएगा, दूसरे सिलेबल से डिफरेंट भी हो जाएगा और दूसरे सिलेबल से डिफरेंटली सुना भी जा सकेगा। okay? ये उसमें क्वालिटी ऐड हो जाएगी। ओके, सो दीज आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोमिनेंस, दे वर्क इन कॉम्बिनेशन। अब ये सारे कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं यूजुअली। although prominence may be produced by only 2 or 3 of them, अब जरूरी नहीं है कि simultaneously अब इन सब को यूज करें तो तब ही प्रोमिनेंस होगी, बल्कि आप इनमें से 2 फैक्टर्स भी यूज कर लें तब भी वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। ओके, इवन 1 भी समटाइम्स आप यूज कर लें तब भी क्या हो जाएगा, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। लाइक इफ यू आर विस्परिंग टू समबॉडी, तो आप वहाँ पे लाउडनेस ज्यादा तो नहीं ऐड कर सकते, तो आप उसमें अगर उस सिलेबल को आप लेंथ दे देते हैं तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, दूसरों से डिफरेंट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी से कि जो मीन एक्सपेरिमेंट्स शो दैट द लेंथ एंड पिच have a more powerful effect in prominence, while loudness and quality are slightly weaker factors. जो फर्स्ट वन आपको बताया और लास्ट वन, ये थोड़े वीकर फैक्टर्स हैं। लेंथ और पिच जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट्स। अब इन चारों फैक्टर्स को यूजुअली हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक सिलेबल हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, एक सिलेबल दूसरे सिलेबल से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि किस तरह से एक सिलेबल को जब हम बोलते हैं तो वो दूसरों से डिफरेंट किस तरह से होता है। अब वर्ड जब आएगा आपके पास तो यू विल हैव क्लियर व्यू कि स्ट्रेस को हम किस तरह से देते हैं। तो ये जो हमने पहले बात कर ली
कि वर्ड जो है वो मोनोसिलेबिक भी हो सकते हैं, बायसिलेबिक, और उसके साथ पॉलीसिलेबिक भी हो सकते हैं. सो अ पॉलीसिलेबिक वर्ड इज ग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ द रिलीज ऑफ सिलेबिक एनर्जी. तो एक वर्ड में डिफरेंट सिलेबल्स होते हैं. आगे हम सिलेबल्स को भी डिफाइन करेंगे कि सिलेबल क्या होता है. तो अब वहां पर जो आम तौर पे एक वर्ड में जब हम मूव कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिलेबल्स को देख रहे होते हैं, तो इट कैन बी सीन दैट फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट टू द लेस स्ट्रॉन्ग टू द वीक. हम ऐसे उसमें स्ट्रेस को जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये वर्ड था, इसमें ये सिलेबल्स थे, तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट सिलेबल कौन सा था, और उससे लेस प्रोमिनेंट कौन सा था, और उससे वीक कौन सा था. इवन कि ये डिफरेंट हम उसमें क्या करते हैं, देखते हैं. जैसे कि अब आपके सामने अगर एक वर्ड यहाँ पर, दैट इज कंसोलिडेशन. ओके, कंसोलिडेशन. अब इसको मैं बोलूँ अगर, ओके, इन अ वे टू स्ट्रेस द पार्ट, सो दैट विल बी कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, डेशन. ओके. अब इस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं आपके पास? कन सो ली डे शन. 1 2 3 4 5. ओके, 5 सिलेबल्स हैं इसके अंदर. 5 सिलेबल्स हैं. अब इसमें जो सिलेबल सबसे प्रोमिनेंट आपको बोलते हुए नजर आता है वो है डे. ओके, डे, डे. ओके. सो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन. अब यहां पर तो आप कहेंगे कि जो स्ट्रेस है बेसिकली सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट सिलेबल है आपके पास, वो कौन सा है? वो 4 सिलेबल है. 4 सिलेबल. ओके. जो सिलेबल एक वर्ड में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे? ये प्राइमरी स्ट्रेस है. प्राइमरी स्ट्रेस है, मोर प्रोमिनेंट है, सारे सिलेबल्स इर्द गिर्द नेबरिंग सिलेबल से ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? primary stress. Means being Pakistani student and means learning here this second language, if you if you are able to find even the primary stress, that is enough in the word, because most of the time whenever we're speaking words, we do not add the right or accurate stress in words. But even recognizing that stress, that can be something very much good. So if somebody is speaking in front of you any word, and you can just pick the right stress syllable, so that is all right. Even whenever you are speaking, if you add stress to your words would be beautiful, your speech would be impressive. और अगर आप उनमें नहीं ऐड करते, स्ट्रेस नहीं ऐड करते, तो आपकी स्पीच बड़ी फ्लैट सी होगी, बड़ी अनइम्प्रेसिव सी होगी. सो nobody would like to listen to it. So that is why stress plays a very important role whenever you are speaking. तो आगे हम स्ट्रेस की जो लेवल्स हैं, बेसिकली आप 2 ही समझ लें तो इनफ है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी आप समझना चाहें, मैं आपको सारे बता देता हूँ. बेसिकली हम स्ट्रेस को 4 लेवल्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है प्राइमरी स्ट्रेस. ओके. एक होता है सेकेंडरी स्ट्रेस, और एक होता है टर्शरी स्ट्रेस, और लास्ट होता है वीक स्ट्रेस. प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस, टर्शरी स्ट्रेस एंड वीक स्ट्रेस. अब पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर लेते हैं. बाकी आप वैसे उनको देख सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट फोकस जो है वो इन्हीं 2 पे कर लेते हैं. आपको ऐसा समझ आ जाएगी कि चीजें किस तरह से क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं. तो प्राइमरी स्ट्रेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इन अ वर्ड. प्राइमरी स्ट्रेस is the strongest stress in the world. अब strongest stress में आपके पास जो एग्जांपल है आप उसको ले सकते हैं. Like you are speaking a word which has 2 syllables basically. Around, around. Okay, so this is the word. So around, around. अब यहाँ पे a सेपरेट है, जो शवा आपने यूज किया, और आगे जो है वो, और आम तौर पे whenever you will consult dictionary, you will see there is a bar, okay, up above that syllable. एक स्मॉल सी बार आपको नजर आएगी. वो बार जब ऊपर की तरफ हो, उस वर्ड के ऊपर दी हुई हो, तो उस बार को हम क्या कहते हैं कि वो प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है. कि आपको पता चल जाता है कि एक वर्ड में डिक्शनरीज भी जब आप देखते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन हुई होती है वर्ड की,
वहाँ पर उस वर्ड को डिफरेंट सिलेबल्स में डिवाइड किया गया होता है, और कुछ सिलेबल्स जो भी होते हैं उन पर एक सिलेबल एक वर्ड में है तो उस पर एक बार आपको नजर आएगी, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द सिलेबल एंड दिस इज स्ट्रेस, और यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस है। वो ऊपर वाली बार आपको प्राइमरी स्ट्रेस के बारे में क्या करेगी, बताएगी। ओके, सो yes, here second syllable is more prominent, isme, okay, the stress on the second syllable uh, is more prominent. The most important factor about stress in this word is that after the second syllable the pitch of the voice does not remain level but falls from higher to lower. Okay, so this prominence results from a movement or tone of the pitch and is called primary stress. Okay, so this is primary stress. And then we have secondary stress. सेकेंडरी स्ट्रेस, अब प्राइमरी, अब देखें आप एक वर्ड बोल रहे हैं और उसके 2, 3, 4 सिलेबल्स हैं। जब अब ये नहीं हो सकता कि एक वर्ड में 4 सिलेबल्स हैं, 5 सिलेबल्स हैं, उन 5 सिलेबल्स में से 2 मोस्ट प्रोमिनेंट है, ये नहीं हो सकता। ओके, होगा एक ही प्रोमिनेंट। अब उसके बाद जो भी सेकंड नंबर पे प्रोमिनेंट होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको सेकेंडरी स्ट्रेस, आप उसको सेकेंडरी स्ट्रेस में लेके आएंगे। तो अब सेकंड के बाद अगर कोई थर्ड वाला है तो उसको टर्शरी पे चला जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो सारे वीक में ही आ जाएंगे सारे के सारे। लेकिन अगर इवन आप प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद सबको वीक भी कह दें तो नो प्रॉब्लम। ओके, इफ यू हैव पिक्ड primary and secondary stress in a word, so after that if you call any of the word that it is unstressed, so it is any of the syllable that it is unstressed, so it is all right। अब tertiary उसको ना भी कहें, लेकिन अगर आपको आप देखें कि एक वर्ड है जिसमें 3 syllables हैं तो आप कहते हैं कि इसमें प्राइमरी एक सिलेबल है, एक में सेकेंडरी है, तो लाजमी बात है अगला टर्शरी होगा। ओके, थर्ड वाला उसमें टर्शरी होगा। तो इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इवन two levels of stress in one word, that is all right। Yes, what's the question? The document I sent to you, it has this particular level, so you can look at it, and I can also tell you the spellings: TERTIARY, tertiary। Okay, TERTIARY, tertiary। Okay, so secondary stress, sometimes there is a stress in a word which is weaker than the primary stress। अब secondary stress को आप क्या कहेंगे, that is weaker than the primary stress, that is secondary stress, but stronger than the unstressed syllable। अब वो primary stress से weaker होता है, और जो unstressed syllables हैं, ये tertiary stress हैं, उनसे क्या होता है, stronger होता है। this is called, you would say this is called secondary stress। तो secondary stress में आपके पास जो अब जिस word की आप example आप जो है वो ले सकते हैं। ओके, वो ये है word that is photographic। photographic, photo होता है ना, photograph, graphic। ओके, तो photographic। ओके, तो ग्रै पे तो प्राइमरी स्ट्रेस है, लेकिन जो फऊ है, फऊ, ओके, उस पे क्या है, सेकेंडरी। और सेकेंडरी स्ट्रेस का जो मार्क है आप नीचे की जानिब लगाते हैं, वर्ड के ऊपर नहीं लगाते, बल्कि वर्ड के मीन के उस सिलेबल के नीचे लगाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रेस है। ओके, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रेस आर मींस आर देयर इन दिस वर्ड, कि फाउ दैट इज सेकेंडरी और ग्रै दैट इज, और इस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं, फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, 4 सिलेबल्स आर देयर। और इसमें फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, तो इसमें आपके पास ग्रे जो है वो प्राइमरी स्ट्रेस है, फाउ जो है सेकेंडरी है, और आई थिंक सो ट जो है वो दैट इज टर्शरी, और लास्ट जो है वो क्या है, नॉन स्ट्रेस है। आप उसको उसमें देख सकते हैं। सो प्राइमरी स्ट्रेस इज denoted by a small line above the syllable, while the secondary stress is denoted by a small line below it। okay, तो इनको आप क्या करेंगे, देखेंगे, so you will come to know कि ये किस तरह से डिफाइन होता है। so that is और बेसिकली आपने एक वर्ड में क्या करना होता है, बेसिकली आपने एक वर्ड में ये देखना होता है कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं और कौन सा सिलेबल दूसरे सिलेबल से प्रोमिनेंट है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट नजर आए आपको,
ओके, नजर आया ऑब्वियसली। इसके लिए तो अच्छी प्रोनाउंसिएशन का होना जरूरी है, या यू नो हाउ टू पुट स्ट्रेस। तो अगर तो यू नो हाउ टू पुट स्ट्रेस, इट मींस दैट यू नो which syllable is stressed। और अगर आपको ये नहीं है तो certainly you can take the help from dictionary। आप वहाँ पे देख सकते हैं कौन सा, और इसमें 1 2 3 एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से वो मूव कर रहा है। ओके, अब स्ट्रेस जो है वो बेसिकली शिफ्ट भी होता है समटाइम्स। वर्ड्स की कैटेगरी बदलने से स्ट्रेस क्या होता है, शिफ्ट भी हो जाता है। कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड जो है वो एक किसी जगह पे वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, फिर नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, या समटाइम्स एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, और वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, शिफ्ट भी होता है। ओके, उसकी एग्जांपल्स भी उसमें दी हुई हैं आपके पास कुछ, और कुछ मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास 2 वर्ड्स हैं, फ्रेट नाइस। ओके, FRATERNISE। ओके, ये आपके पास भी जो नोट्स हैं उनमें भी अवेलेबल है। तो फ्रेटरनाइज और फ्रेटर्निटी, तो इसको जब आप बोलेंगे तो यू स्पीक इट लाइक दिस। ओके, फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज। ओके, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। ओके, तो अब इसमें जो पहले वाला जो आपके पास है वो वर्ब है। तो वर्ब में आपके पास जो स्ट्रेस आपके पास आ रहा है वो फ्रे के ऊपर आ रहा है, फ्रे के ऊपर आ रहा है। ओके, तो जो सेकंड है उसमें सेकंड सिलेबल पे आ रहा है, और उसमें जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो ट ट पे आ रहा है। ओके, तो वो जब वर्ब से नाउन में शिफ्ट हुआ है तो उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसका जो स्ट्रेस है वो भी सिलेबल के ऊपर शिफ्ट हो गया है। कि पहले वाले में जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो क्या है, फर्स्ट सिलेबल के ऊपर है, सेकंड वाले में जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल के ऊपर है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं। एक है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। तो एक्स के ऊपर सिलेबल है, और एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। तो एक्सेल दैट इज ऑन द सेकंड सिलेबल। तो वर्ड की कैटेगरी के ऊपर भी होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक वर्ड, अगर एक ही जैसा वर्ड डिफरेंट कैटेगरीज में यूज हो रहा है तो उस पर एक ही जैसा स्ट्रेस रहे। वो स्ट्रेस क्या होता रहेगा, चेंज भी होता रहेगा। ओके, और ये जो स्ट्रेस, अब ये स्ट्रेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये जो वेरी करता है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो शिफ्ट होता है प्राइमरी स्ट्रेस यूजुअली, ये किस तरह से शिफ्ट होता है। इसमें आपने 3 4 बातें माइंड में रखनी है कि हमने एक वर्ड पर स्ट्रेस को पुट करते हुए इन चीज़ों को माइंड में रखना है। नंबर 1, वेदर दैट वर्ड इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पहले तो ये देखना है कि वर्ड सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि इट हैज मोर देन 2 3 सिलेबल्स, तो वो कॉम्प्लेक्स वर्ड होगा ऑब्वियसली। या वो वर्ड कंपाउंड है तो वो भी उसी तरह से होगा। इसी तरह से मीन आपने ये भी देखना है कि वर्ड सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो व्हाट इज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड, वेदर इट्स नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। ये भी आपने देखना है कि ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, या नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इसको भी मीन के उससे भी आप स्ट्रेस को क्या करेंगे, पुट करेंगे। एंड हाउ मेनी syllables आर देयर इन द वर्ड, you will also look at this, how many syllables are there in the word, and what is the phonological structure of those syllables, कि किस तरह से उनको क्या किया गया है, पुट किया गया है। इसको भी आप क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल्स है, लाइक एक वर्ड है, एक वर्ड है प्रोड्यूस। यस, व्हाट इज द फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दो सिलेबल्स, कि किस तरह से उनको उनको वहां पर जो है वो लिखा किस तरह से गया है, और उनको उसमें डिफ्थोंग है, उसमें लॉन्ग वॉल है, उसमें शॉर्ट वॉल है। इसको आपने देख के तो फिर हम वर्ड का स्ट्रेस भी क्या कर लेते हैं, समटाइम्स हम डिफाइन कर लेते हैं। तो अब इसमें एक वर्ड जो है वो आपके पास अगर नाउन है या एडजेक्टिव है तो उस पे स्ट्रेस कैसे है, और वो सेम वर्ड आपके पास वर्ब है तो उस पे स्ट्रेस कैसे है। ओके, इसमें जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट भी बनी हुई है, यू कैन लुक एट दैट लिस्ट। ओके, तो दैट इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। ओके, वो नाउन या एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा अगर। ओके, और अगर वो वर्ब के तौर पे यूज होगा तो उसका जो स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल। ये पूरा पैटर्न नीचे तक चलेगा, एक ही जैसा पैटर्न है। ओके, अगर आप उसमें देखेंगे जैसे कि लाइक यू से प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। ओके, तो वो उसमें ड्यूस के ऊपर सेकंड है। ओके, इम्पोर्ट, 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 इम्पोर्ट। ओके, वो उस पे आ जाएगा। इसी तरह से
सब्जेक्ट, 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 ओके। सब्जेक्ट उसमें फर्स्ट वाला है और सब्जेक्ट, ओके, दैट इज ऑन सेकंड वन, ओके। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके, एंड परफेक्ट, परफेक्ट, ओके जी। Okay, but if so, that is, I mean, if you produce it like this, so it doesn't mean that that is the right way. So that is why I'm teaching you that you must change the way you speak. Okay. नहीं, यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, कैटेगरी दी हुई है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब में एक ही जैसे स्पेलिंग के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। तो जब एक ही जैसे स्पेलिंग पे यूज होते हैं तो हम उस, जब वो उस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे होंगे ना, कैटेगरी आप देख रहे होंगे, ठीक ठीक है। जैसे कि मैं अब सेंटेंस बोल के आपको उसको समझा देता हूँ, ठीक है। सेंटेंस बोल के जैसे कि रेकॉर्ड होता है और रिकॉर्डेड होता है, वर्ब के तौर पे रिकॉर्डेड होता है, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं वी वी रिकॉर्डेड द फिल्म, ओके, वी रिकॉर्डेड द फिल्म, ओके। सो रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, अब उस पर जोर दे रहे हैं। लेकिन अगर के वसीम अकरम हैज मेड अ रेकॉर्ड, ओके, तो अब देखें ना कि इफ यू नो कि हम जब नाउन बोलेंगे तो नाउन में आपने फर्स्ट जो सिलेबल है उसको आपने स्ट्रेस करना है। तो जब आप उसको सेंटेंस में लेके आ रहे होंगे तो यू नो कि यहाँ पे आप रेकर्ड जब आप यूज कर रहे हैं, इट मींस यू आर टेकिंग इट एज नाउन। और अगर आप इसको जैसे कि मैं कहूँ कि वी हैव मैनी, वी हैव मैनी rebels in our society, we have many rebels in our society, okay। तो ये अब रेबल्स यहाँ पे जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ये क्या है, ये नाउन के तौर पे यूज कर रहा हूँ। रेबल्स मैंने उसके साथ एस भी लगाया, प्लूरल उसको बनाया, सो इट इज नाउन। तो इसमें जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल है, ओके। तो दूसरा हम क्या कहते हैं कि मैनी पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट सोसाइटी, ओके, रिबेल्ड अगेंस्ट सोसाइटी। तो मैनी पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट सोसाइटी वहां पे वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो स्ट्रेस वुड बी ऑन द सेकंड सिलेबल। और आपके ये बोलने में भी प्रोमिनेंट होगा, ओके। आप नहीं, आप ये अगर कहेंगे कि मेनी पीपल रेबल्ड अगेंस्ट सोसाइटी, सो दैट वुड लुक वेरी मच डिफरेंट एंड वियर्ड, ओके। तो इसी वजह से हम जब स्ट्रेस को पुट कर रहे होते हैं तो उसमें हम वर्ड की कैटेगरी और बोलते वक्त भी हम उन चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, ओके। अगर आप कहें आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, ओके, तो कितना अजीब लगेगा, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, ओके। प्रेजेंट होता है ना, ओके, नाउन के तौर पर, लेकिन जब आप उसको वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, ओके, प्रेजेंटेड माई सेल्फ, तो वो क्या होगा, वो कंपेरेटिवली उससे डिफरेंट होगा। और कभी कभी इंग्लिश में जो वर्ड हैं वो जो नेटिव स्पीकर हैं उनमें भी स्ट्रेस, वर्ड का जो स्ट्रेस है, सिर्फ सेंटेंस की हम बात नहीं कर रहे, जो वर्ड का स्ट्रेस है उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी पाई जाती है, ओके। बल्कि वो वर्ड ही मैंने आपको बोल दिया, ओके। सो ये वर्ड जो है वो कुछ इंग्लिश जो लोग हैं वो फर्स्ट सिलेबल पर उस पर स्ट्रेस करते हैं, जैसे ये बोलते हैं कंट्रोवर्सी, ओके, ओके। और एक जो है वो कुछ जो है वो बोलते हैं, वो बोलते हैं कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, ओके, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। तो वो कुछ जो है वो फर्स्ट जो सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे होते हैं, और कुछ जो है उसमें सेकंड जो है उस पर क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेस कर रहे होते हैं। इनके कुछ जो है फर्स्ट को प्राइमरी स्ट्रेस कंसिडर कर रहे होते हैं और कुछ सेकंड को प्राइमरी स्ट्रेस क्या कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। इसी तरह से कंपाउंड वर्ड्स जो है उनमें भी स्ट्रेस क्या होता है समटाइम्स, उसको भी देखना होता है कि कंपाउंड वर्ड जो हमारे पास है उसमें स्ट्रेस किस तरह से आता है, ओके। समटाइम्स कंपाउंड जो वर्ड्स हैं आपके पास उसमें प्राइमरी स्ट्रेस फर्स्ट पे होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस थर्ड पे होता है, ओके। जैसे कि आपके पास वर्ड है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, ओके। तो इसमें बॉ, बॉ फर्स्ट वाला और लाइन थर्ड वाला। अब इसमें बॉर्डर लाइन, ओके, तो उसमें प्राइमरी स्ट्रेस जो फर्स्ट पे है और सेकेंडरी स्ट्रेस थर्ड पे है। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जिसमें प्राइमरी स्ट्रेस फर्स्ट पे होता है और सेकेंडरी स्ट्रेस फोर्थ पे होता है। लाइक वी हैव, यहाँ पे पहले वर्ड में बोलूंगा फिर उसको स्ट्रेस करूंगा, ओके। सो दैट इज नेशनल इशू, ओके। So that is
national issue, okay, national issue, okay. तो वो अब फोर्थ उस पे है। इसी तरह से समटाइम प्राइमरी स्ट्रेस थर्ड पे होता है और सेकेंडरी स्ट्रेस फर्स्ट पे होता है, ओके। तो दैट इज सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, ओके। तो हैंड जो है वो क्या है, वो प्राइमरी स्ट्रेस है उसके ऊपर, और जो सेकेंडरी स्ट्रेस है फर्स्ट के ऊपर है, सैड, ओके, सैड, ओके। तो सॉरी, यस, फर्स्ट सिलेबल के ऊपर। तो इन दिस वे कि वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कुछ उसमें चेंजेस भी आती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस। और कुछ स्ट्रेस में वीक फॉर्म्स भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स भी होती हैं, लाइक व्हेन एवर यू आर स्पीकिंग सर्टन वर्ड्स डिफरेंटली, separately, so they have weak forms, and when you just speak those words in a speech or in a sentence, they have weak forms, like we speak that, okay। जब हम बोल रहे होते हैं इसको सेपरेटली बोलने तो हम that ही बोलेंगे, लेकिन अगर हम इसको, ये इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये ओबियसली स्ट्रेस के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी में फोनोलॉजी में भी हमारे पास वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स भी होती हैं, और जो नोट्स मैंने आपको सेंड किए हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो वीक फॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। तो अगर आप इसको एक सेंटेंस में बोलेंगे तो यू विल से आई होप दैट आई होप दैट शी विल कम, ओके, आई होप दैट शी विल कम, ओके। सो दैट नहीं, दैट वो उसमें क्या है आ जाएगा। तो अब वो दैट एंड दैट, ओके, वो जो है वो उसमें दैट इज अ लॉन्गर फॉर्म, और वो स्ट्रॉन्गर है, वो आई मीन स्ट्रॉन्गर और वीकर, एक में वीक है और एक में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसको भी आप देख सकते हैं सेंटेंसेस में भी हम यूजुअली, जैसे एंड है ये अंड, वो भी हम अन भी हम यूज करते हैं, अन, ओके। तो इस तरह की जो वीक फॉर्म, जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, they are also in English, okay। So that's all for today, from suprasegmental features, and certainly there are other suprasegmental features we'll pay attention to, but for today we have only focused on stress, one of the